وہ مضمون تھی وہ کیا پڑھاتی تھی؟ علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب موہ پن پن کٹ پہ موری کھلیا موڑ دیو یہ اچھا آپ دیکھیے ایسا. السلام علیکم یار، ایک کام کرو atombuddy.com پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے اپنی مرضی کا بہترین سے بہترین قیمتی سے قیمتی موبائل پلے اسٹیشن جو لینا وہ خریدو اور اس کے بعد قسطوں پہ آسان اقساط پہ وہ پیسے واپس کرو. مزے آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علامہ صاحب. علامہ صاحب آپ اندر آ چکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ لوگ پراپرلی باہر سے سینیٹائز ہو کے آئے ہوئے. وہ جی ہاں، اسی لیے میں نے شکایت کیا. دیکھیے وہ جیبوں میں رکھتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھ ماسک آپ کا. او اچھا 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 اچھا. مقصد ہے SOPs جو سرکار نے بتا دی ہیں تو ہم پوری طرح ان کے پابند ہیں. یہ طے در طے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے درمیان تو جو کہ سوشل ڈسٹینس بھی ہے نا، اور وہ ویسے ہی آپ کی پشت پر ہے تو اس لیے زیادہ بہتر ہے. اور پھر ویسے بھی ہم سینیٹائز یہ نان سوشل ڈسٹینس. ہاں اتنا نالائق بچہ یہ ہے. لیکن آپ کی پشت پناہی میں یہ پشت پناہی تو یہ فرما رہے ہیں نا، اب بڑے ہو گئے بھائی. جوان بچہ جوان ہو جائے تو ماں باپ کو کہتے تم چھوٹے ہو گئے. یہ جوان ہوئے ہم بچے ہو گئے. ہمیں سمجھاتے ہیں یہ جو ہے یہ کن کھجورا پیچھے کھڑا ہے. اتنی محنت کی ہے کہ FSC کروائی، اس کو زور لگا لگا کے ٹیوشنیں پڑھا کے کہ ڈاکٹر بن جائے گا. یہ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں نے سنگر بننا ہے. اچھا ریپ سٹار، ریپ جھینگ ٹاکا جھینگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. ایسا نالائق انسان. میں نے زندگی وہ دوسرا کیوں نہیں آیا وہ جو بڑا کان کھجور ہے، وہ ڈاکٹر صاحب اس لیے نہیں آیا کہ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے تمہارا علاج کراتا ہوں، انجینئر بنو. کہتا میں نے ڈانسر بننا ہے. اب دیکھ یہ ہمارے بچوں کے حالات دیکھیں آپ، چیک کریں. ایک سنگر ایک ڈانسر، اس کو ادیب بننے کا شوق ہے. پروین شاہ کے نئی ایک آ گئی شاعری میں کہانی افسانے نگار بنتی ہے کہانی. لیکن علامہ صاحب آپ جینز تو آپ کے ہیں نا، آپ بڑے اچھے شاعر، آپ کے والد صاحب بڑے اچھے شاعر. حضرت علامہ لباس آپ تو شاعر در شاعر در شاعر ہیں. ہاں نا حضرت علامہ بچین اچھل کود بھی اس پائے کے ماشاءاللہ اشعار فرماتے تھے. ہائے کود کود کے فرش اکھیڑ دیا کرتے تھے مشاعرے کا. جس مشاعرے میں جانا نچلا بیٹھنا تو گویا سی کر دن نا تا تا نا کا نا کا دن نا نا کا تا دن 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 نا تا تا نا کا نا کا دن نا نا کا تا. یہ تھے حالات ان کا اشعار. علامہ صاحب یہ جو ابھی آپ نے کیا کر دن یہ آپ نے سیکھا؟ سیکھا ہے. تو آپ نے گھر پہ بھی اس کی کوئی پریکٹس وغیرہ کی؟ ہم بہت، ہمیں دیکھیں ہم تو خاندان ہے نا، بہت بڑے موسیقار تھے ہمارے آبا و اجداد. باجا طبلہ تو گھر میں یوں تھا برتنوں کی طرح. اچھا تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں جب اپنی شروع کی زندگی میں ہوتے ہیں، یعنی 2 سے لے کے 7 سال کی عمر میں، وہ بڑوں کی چیزوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہاں تو یہ طبلوں پہ تو بیٹھتے تھے. تو پھر ہم نے ایسا ماحول مہیا نہیں کیا کہ وہ موسیقی کی طرف راغب ہو گئے. اس نے باجے پہ بیٹھ جانا، اس نے طبلے پہ بیٹھ جانا. وہ دوسرے دیا دا ڈھومک ٹاکا ٹک دیا دا ڈھومک ٹاکا ٹک دیا دا ڈھومک ٹاکا ٹک. تو یہ دیکھیں نا کہ آپ نے تو ماحول مہیا کیا نا وہی والا. لیکن ہم تو ساتھ میں کوشش کی نا کہ پڑھ لکھ جائیں. وہ تو بات آپ کی وجہ ہے. منشی فاضل کیا ہوا ہم نے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. پرانے زمانے کا لکھنؤ سے. میں ابھی گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے گھر میں آلات رکھے ہوئے، ہم نے تبلا رکھا ہوا، ہم نے سارنگی رکھی، آلات موسیقی، آلات یہ نہ اگلے کوئی سمجھے بندوقیں رکھ لی ہم نے. تو اب آپ نے وہی والے آلات گھر پہ رکھے ہوئے. ایک بچہ ہے اس نے آپ کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور کچھ جو ایسی صحبت آپ کی ہے، کچھ صفات آپ نے. ہاں جی دیکھیں نا ہم تو ادیب شعراء پتہ نہیں کہ یہ جو جی بیٹھیے آپ جمع کرتے رہیے گا، پھر ہم اکٹھے لے لیں گے. اب آپ جمع کرتے رہیے نا. بیٹھیے تشریف رکھیے. یہ اس کو تشریف رکھیے نا. دیکھیں ٹیوشنیں پڑھا کے ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کڑکی آ گئی ہمیں. علامہ صاحب بات پتہ کیا ہے، میں ایک دفعہ بیٹھیے نا، ایک دفعہ بیٹھیے. بیٹا آپ کو جس وقت انہوں نے FSC میں داخل کروایا تو میٹرک کے بعد تو بڑے اچھے نمبر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی FSC میں
कोई तालिब इल्म जा सकता है। जी जी। तो क्या आपने उस वक्त इजहार नहीं किया कि मैं साइंस सब्जेक्ट की तरफ जो है वो मेरी तवज्जो कम है, मैं नहीं जाना चाहता? मैंने बोला था, उन्होंने मेरा गिटार तोड़ दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप बाज़ बंदा माँ को कहता है, माँ की तरफ आता है, माँ से बात करता है। ये नहीं सुनते, ये कहते हैं डॉक्टर बनना तो बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, आप सिर्फ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स ही इस्तेमाल करते हैं या बाकायदा मैं गाते गाता भी? भी हूँ। मसलन कुछ सुनाइए। हम नवा ओ हम नवा, ढूंढूं मैं तुझसा कहाँ, हम नवा ओ हम नवा, आजा के तू है कहाँ। देखिए लेकिन कब मैं से- अच्छा गाता हूँ। बस सुनो। अच्छा, कब से? कैसे बस कब से? मैं बकरी मैं तो- ये बड़ा तो अल्लाह साहब आप तरबियत करते तो वो मौसीकी और ज्यादा अच्छे से सीख जाता। अबे तू धाड़ी के बच्चे, तू मुझे ये बता कि तू पढ़ तो सही ना साहब। वो पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, लम्हा सब 100% पढ़ेगा, लेकिन थोड़ी सी एक बात मैं उनसे और मजीद जानना चाहता हूँ कि मैं आपको राज की बात बताता हूँ, वो क्यों नहीं पढ़ा, और मैं ये भी बताऊंगा कि वो डांसर क्यों बनना चाहता है। थर्ड मैं ये भी डिवीजन बताऊंगा- थर्ड डिवीजन जी। 3 साल से एफएससी में अटका हुआ है। हम नवा मैं फेल हुआ। ये अब आप देखिए, अब आपने बजाते खुद तो ऐसा माहौल गुनगुनाहट का बनाया हुआ है, तो क्या आप मुझे बताइए, आप बाथरूम में जाते हैं और गुनगुनाना, आप बहुत रात ऊंचा- को बैठे बहुत हैं, ऊंचा गुनगुनाते हैं। नहीं नहीं, बाथरूम मुझ में आके गुनगुनाता है। आप तो इनके साथ मिल गए डॉक्टर साहब। ऐसा कब हुआ? ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। मुझे तो ये पता है कि आपके बच्चों में आपकी सिफात, आपकी आदत, आपके बल्कि वो जो खसाइल, अच्छे खसाइल, वो मुंतकिल हो। एक ताले का बोल पढ़ के सुना दे। हम सुनाते दिन दिन धक धकड़ती ना कत्ता धक दिन ना धा, ये एक से बोले सुना। अच्छा, आपको इसका मतलब उसके मौसीकार होने पे एतराज नहीं है, अच्छा मौसीकार ना होने पर एतराज है? दोनों बातें। पहली बात तो ये कि पहले तालीम का अपना मुकम्मल करिए ना, तवज्जो दे। नंबर 1 अपना करियर में, मौसीकी में आज तक हमें किसी ने नहीं सुना। इसके बाप दादा बेचारे बैठकों में गा गा के मर गए, फटड़ हो गए, इसको कौन सुनेगा बताएं। जी बेटा, आप क्या कहते हैं? आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। जी डॉक्टर साहब। मैंने मान लिया आप एक तो खौफजदा नहीं हो, हाथ नीचे कर लीजिए, कुछ नहीं होता। हम आज ये फिर गाना शुरू करेगा और मैं इसकी चित्रों शुरू हम गाना नहीं गाने देंगे। आप बड़ी मैं अहम बात अलावा सब आपके सामने रखना। अगर इसने रैप शुरू कर दिया है ना, तो मैंने आप इसका स्लैब शुरू कर दीजिए। स्लैब शुरू कर। ठीक है, अगर वो रैप करेंगे तो आप स्लैब शुरू लेकिन कर शायद दीजिए। है ना, माशाल्लाह। तो क्या- मुझे एक बात बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या काफिया मुकफ़ा, सुभान अल्लाह गुफ्तगू। आपको क्लास में जो सबसे अच्छी टीचर जो है वो कौन लगती थी या लगता था? लगती थी मिस सना। ये घटिया इंसान जो मेल टीचर थे ना, उनसे पढ़ते नहीं है, ये पूर्ण है पैदाइशी। आप ये बेसिकली आपकी राय है। मैं आपको गलत राय नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप गलत गुमान कर रहे हैं, आपकी राय गलत नहीं है। ये हमारा मुझे- मुशाहिदा है, तजुर्बा है। 100 दफा शिकायतें मोहल्ले से आ चुकी हैं। जी वो लड़कियों को देख के गुनगुनाता है नुकरों पे खड़ा हो। तो अलामा साहब, मामला तो कुछ ये है कि कुछ चीज़ें तो जो है ना हमें जते अमजद से मिलती हैं। हम ऐसे कब थे? आपके गाने दूसरे तो गुनगुनाते हैं, आपके गीत दूसरे तो गुनगुनाते हैं, आपकी गजलें जो है वो दूसरे इतने तगज्जुल के साथ होते मोहे हैं। पनघट पे मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोरी नाजुक कलैया, मोरी नाजुक कलैया, मैं रोड़ गयो रे मोहे पन मोहे। ये पनघट पे मोरे खलैया मोड़ दियो। ये अच्छा, आप देखिए आप अरे बना सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया काम। ऐसा नहीं है, डॉक्टर ऐसा साहब, देखिए, मैं एक छोटी सी बात है, आपने माहौल पैदा किया, अभी आपने गाया, तो मैंने तो अच्छा गाया ना। आपने अच्छा गाया, अब आपने अच्छा सिखाया हो तो वो बहुत अच्छा वो गाने लग जाएगा। मैं लेकिन जिस सवाल की तरफ मैं जाना चाह रहा था, हम उससे थोड़ी सी अदम तवज्जगी की तरफ जा रहे हैं। वो ज़रा सवाल अगर मुझे दोबारा करने दीजिए। वैसे तो दाद है आपकी, आप तो क्या खूबसूरत
गा रहे थे, हाँ। क्या खूबसूरत आपने आलाप लिया, हाँ। और क्या खूबसूरत आपकी मुरकरियाँ थी, हाँ ना। हमारा कमाल है। लेकिन मैं एक बात उनसे मैंने जो सवाल किया था, मिस सना आपको क्यों अच्छी लगती थी? वो भी सिंगर है, ये इससे गाने सुनती है वो क्लास में। हाँ ना, वो मेरे दिल की बात सुनती थी। ये ठीक हो गया। तो आपके जो वो मजमून थी वो क्या पढ़ाती थी? अलामा साहब, अलामा साहब, अलामा साहब, अलामा साहब, इसको तेरे दिल की बात कर। इसको नीचे रखिए, नीचे डॉक्टर साहब देख रखिए। रहे हैं। बड़ी पते की बात है अलामा साहब। मुझे बताओ बेटा कि मिस सना किस सब्जेक्ट को पढ़ाती थी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? इतना मुश्किल सब्जेक्ट था। तो आपके सब में से ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आते थे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। अबे ऊंचा बोल। यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो टीचर थी, सिर्फ आपसे वो मौसीकी सुना करती थी और खुद वो मौसीकी बहुत अच्छे से कर सकती और थी। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ओह, अच्छा। देख उसकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत मिलती थी। तो देखिए, केमिस्ट्री मिलने का मुराद यह है कि मिजाज मिलता है। अलामा साहब, केमिस्ट्री मिलने से मुराद हरगिज आपका वो नहीं है जो आप सोच डॉक्टर रहे हैं। साहब, ये मेरा बच्चा, इसे मैं जानता हूँ। जी हाँ। ये इतना ये घटिया और कमीना है, ये उस्तानियों से इसकी लड़ाता है। देखिए अलामा साहब, आपने अगर ये बात कही है तो फिर अपने आप को बीच में से निकालिए। आप कहते हैं ये मेरा बच्चा है, मुझे मालूम है, तो खुदा न खास्ता ये आदात, ये खसाइल कहीं मुंतकिल तो नहीं। तो फिर आप कैसे कहते हम हैं? तो इंतहाई नजीब तरफैन साबित हुए हमेशा। अच्छा, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, आपका बच्चा वो भी तो शहजहाद की तरफ जाएगा। अच्छी शख्सियत है, ये तो कोई हफ्त से भी आगे निकल गया। लेकिन अलामा साहब, आप एक बात पे गौर कीजिए, एक बात को गौर से देखिए। वो ये है कि उसने उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लिए जो कि इंतहाई मुश्किल मजमून है, खुश्क मजमून है, और उसमें पढ़ाई, तवज्जो, जहानत, काबिलियत, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती। लेकिन चूँकि वो जो मुअल्लिमा है उसके साथ उसका मिजाज मिलता है। इश्क मुझे मटक्का ये आपकी मेरी सोच हो सकती मटक्का मिलता है इसका। है, ये आपकी मेरी सोच हो सकती है। बाकी क्या, इश्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी शहवत की सोच के मबनी होके ही हो सकता है। इश्क बड़े से नहीं हो सकता, इश्क माँ से नहीं हो सकता, इश्क बाप से नहीं हो सकता। इसको नहीं हो सकता, हम इश्क को बदनाम क्यों इसको माँ बाप से नहीं हो सकता सिवाय उस्तानियों के। अलामा साहब, आप वो तो देखिए, एक नेचुरल सी बात होती है कि मर्द है तो वो मुखालिफ जिन्स की तरफ जो है उसकी तवज्जो होना तो ये मर्द है? ये पकौड़े के मुंह वाला, अब तो तुम मर्द कब से हो गया है? अलामा साहब, आपकी औलाद जो है, मर्द कब से हो गया तू? अलामा साहब मैं- देखिए, अभी भी आप तस्कीर और तानीस का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं, तो मर्द तो वो है। बच्चे अभी तो ये वो बात है जो अब आपने कही कि वो बच्चा है, तो आप उससे अभी से बड़ों जैसी तवक्को क्यों कर रहे हैं? वो भी तो बच्चा है ना। तो आपको हमें भी तो उसके साथ, मुझे बताइए, जब बचपन में ये रोटी को चोची कहता था तो आप उसके साथ कहते थे, चोची, आप चोची कहते थे ना, ताकि उसको समझ आ जाए। हम अपना मुंह टेढ़ा करते हैं बच्चे को ताकि उसको उसकी समझ आए। तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा हम वैसे वैसे अपना अंदाज और अपने समझाने की डिक्शन, हम वो जुबान, उन सब चीज़ों को जो अच्छा ये बात समझ आइए कि मैं जूता पहन लूं दोबारा। जी, अब आप मैं- पहन उसकी लीजिए वजह और ये इसको है- आप दोबारा नहीं उतारिए। हाँ, मेरा ख्याल है जो आपने ये कहा है ना कि क्या बोला कहा? मैंने आपसे ये कहा है कि जिस तरह का उम्र होती है सामने वाले की, हाँ। हम वैसी बात करते हैं। अगर हमारे सामने कोई अंग्रेज आ गया हम अंग्रेजी में बात करते हैं, अगर अरबी दान आ गया हम अरबी में बात करते हैं, हमारे सामने कोई बड़ा आ गया तो हम आप जनाब करके बात कर रहे हैं। यानी जब हम हमारे इससे से छोटा- तवक्को ये रख रहे हैं कि ये हमारी एज में आके सोचे, ये आपकी वो बात ये समझ आप आए। बचपन से 55 की तवक्को कर रहे हैं ना। हाँ। आपको याद है मैंने पहली दफा कहा था कि आप अब बेसिकली बचपन और 55 आप दोनों की सूरत हाल एक जैसी हो के दरमियान कर्जिन है जी। तो अब आपके लिए मेरी छोटी सी एक राय, आपने बताया नहीं ये छोटी शहजादी आज, बेटी है मेरी रिदा, अच्छा यूट्यूबर है, और साथ में इसको है कि मैं परवीन शाकिर बनूं, अफसाने लिखूं। अच्छा, तो आप कहाँ पढ़ते हो भाई?
मैं कहाँ पढ़ती हूँ? जब मैं इंटर में थी ना तो मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद जब मेरे मार्क्स अच्छे आए उसके बाद दोबारा मैं लाहौर कॉलेज में चली गई। अच्छा, तो लाहौर कॉलेज ही को आपने क्यों मुंतखब किया? लाहौर कॉलेज को क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे तो मैं इसलिए उधर चली गई। बाबा ने भी कहा था कि उधर ही जाओ। अच्छा, तो घर में बाबा की ज्यादा बात आप मानती हैं या अम्मी की बात ज्यादा मानती हैं? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे वैसे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने कहा उठ ही जाती हूँ। तो उसके बाद जब मैं उठी मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा यार मैंने नाश्ता तो कर लिया, अब मुझे कुछ करना चाहिए। अफसाना शुरू हो गया, मुक्केगा नहीं। अभी तो मैं बोल रही हूँ, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया। बोलो उसके बाद 2,000 years later. फिर मुझे समझ है, मुझे तो मामा उठा रही हैं। तो जब मामा मुझे उठा रही थी तो सुनने तो सही बाबा। बस बोलो। साहब आप एक बहुत बड़ी बात से और बहुत बड़ी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसी तरह खड़े होके अपनी बेटी का माथा ना चूमे तो बताइएगा जब मैं एंड पे बात करूंगा। आपको मैं राज की बात बताऊंगा। हाँ, आपको मैं राज की बात बताऊंगा। बैठिएगा, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज प्लीज। लामा साहब बैठिए। चुप होगी तो तब मैं माथा चूमूंगा। जी। चुप उसके बाद आप यानी आप सो रहे थे? हाँ, जब मुझे So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. बस कर दे खुदा। उसके बाद डॉक्टर साहब मुझे चुप तो करना। आपका नाम? रिदा। रिदा बता। आप दोनों ना डॉक्टर साहब मेरी बात सुने माजरत के साथ, आप भी अपना इलाज करवाइए। आपके हालात हैं वो बोलते जा रही है, आप मुझे रोक रहे हैं उसको। उसके बाद जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बस कर दे। यही कह रहे थे बस कर दे बस कर दे। फिर मैंने मामा को जाके सारी स्टोरी सुना दी। बस कर दे। अच्छा मुझे बताइए अलामा साहब, एक चीज छोटी सी मुझे जरा पूछने दीजिए और फिर आपकी तरफ में आता हूँ। आपकी बात आप तो मैं हल बताता हूँ क्या हुआ क्या। अच्छा, कभी आपने ये सब कुछ इसको लिखने की कोशिश की? नहीं, मैं तो नहीं लिखती, मैं तो बस स्टोरी सुना देती हूँ सबको। लिखती हूँ लेकिन जब ये मुझे तंग ना करें, क्योंकि मेरी बात नहीं सुनते। फिर मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी से सारा कुछ लिख लूँ। अगली कहानी। अच्छा, फिर मैं बुक बनाई हुई, मैंने वो इतनी अच्छी बुक है, पिंक कलर की है। उस पर जो जो मैं सोचती हूँ उसमें मैं लिखी जाती हूँ, सब कुछ लिख लेती हूँ। अच्छा, कभी आप गए जो शुमाली इलाका जाता है, मरी हुआ या गिलगित बल्तिस्तान या व्लॉग बना के आइए वहाँ पे। मैं इतना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है। क्या किया वहाँ, कैसे गए आप? कैसे गए? हम लोग बस पे गए थे, गाड़ी में गए थे। बस पे जब गए ना, डॉक्टर साहब आप अपने मोबाइल तलाश कीजिए, इलाज अभी आप बैठिए। मैं कहता हूँ अपना इलाज करवाइए। जी मैं बिल्कुल इलाज करवाऊंगा, आप बैठिए। इसका भी साथ करवा दीजिए। जी बिल्कुल, सभी आप बैठिए। इसको चुप करवाएं। अच्छा चलिए, आप हम दोनों बाद में बात करते हैं, आप जरा बैठिए। लम्बा साहब बस करिए। अच्छा एक मिनट मेरे, अच्छा प्लीज आप बेटा आप चुप कीजिएगा। लामा साहब मुझे एक बात वैसे सच्ची बताइएगा, आपसे मैं अब सिर्फ 2 मिनट की खामोशी चाहूँगा। मुझे बताइए कि जब इन्होंने पहले वो जो स्कूल वाला पूरा वाक़या बताया, फिर वो जो रास्ते में सफ़र करना, फिर उसके बाद घर पहुँचना, खाना खाना और खाने के बाद फिर वापस आना, फिर वो मक्खी का अमल, फिर इनका लेट जाना और फिर लेटने के बाद ख्वाब से जागना, माँ का जगाना, फिर चाय बनाते देना, दोबारा से खाना। अच्छा, आप
ڈاکٹر بھی بہت بولتا ہے. अच्छा था ना. आपको महसूस नहीं हुआ कि आप ऐसे ही जैसे साथ सफर कर रहे हैं, वो सारा मंजर खुद भी आप उस मंजर मेरा मुझे महसूस हुआ पैंडो की गोली खाऊं और सो जाऊं. अच्छा, आपको नहीं ऐसा फील हुआ? मुझे गुलाम साहब मुझे आप बताइएगा जरा, अब जरा रोने धोने से बाहर निकल आए. अब यूं समझिए आप इसके बाप नहीं है. मेरी बात सुने, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, कानों में, वो सर में. वो इसलिए हो रहा है कि आपने शुरू से, जब से उसने गुफ्तगू शुरू की, आपने तब से ही उसके बारे में मनफी सोचना शुरू किया था कि ये बहुत बोलेगी, घर पे यही करती है ना. अल्लामा साहब, अगर आप शुरू से यूं समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी अफसाना निगार, एक बहुत अच्छी सफ़रनामा निगार, एक बहुत अच्छी राइटर आपके सामने पूरा एक सफ़रनामा इतने खूबसूरती से बयान कर रही है कि यूं लग रहा है कि जैसे उस पूरे मंजर में आप उसके साथ हैं. आप तो खुद कलमकार हैं, आप तख्लीक़कार हैं, आपने उसकी इस तख्लीकी सलाहियत को समझा क्यों नहीं? वो मरी की बात कर रही है तो लग नहीं रहा कि तो लिखिए, फिर बोलती क्यों है? जी, इसलिए बोलती है कि बच्चों के अंदर लिखने की जो सलाहियत होती है ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होती है. यार इस डॉक्टर के पास हर बात का जवाब है, पागल है ये. जी, मैं आप मुझे जो भी कहिए, आप हमारे बड़े हैं, आप अलामा हैं, आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन ये मेरा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है. और तबाह हो चुका है, ये हम तबाह होने नहीं देंगे, ये हम तबाह और बर्बाद हो चुका है आपका मुस्तकबिल. आज अलामा साहब ज़बरदस्ती और जो ख्वाहिशात की बुनियाद पे औलाद की तरबियत मुमकिन नहीं है. आज हमें अपने बच्चों के ऊपर, हमें कुछ थोड़ी सी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इनकी जो काबिलियत है. इसके बारे में हार्वर्ड गार्नर ने 1985 में एक बात कही थी कि ऐसे बच्चे लिंग्विस्टिक काबिलियत के होते हैं, यानी लिसानी काबिलियत. गार्नर वो जो क्रिकेट खेलता था? जी नहीं, ये हार्वर्ड गार्नर एक बहुत बड़े थ्योरिस्ट थे. उन्होंने उस वक़्त इसको डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि दुनिया में 8 किस्म के लोग पाए जाते हैं. खुशकिस्मती से ये बात करने का मुझे मौका इसलिए मुयस्सर आ रहा है कि उन 8 में से 3 मुख्तलिफ किस्म के लोग इस वक्त मौजूद हैं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. हमें भी शामिल कर लीजिए. जी, आप बिल्कुल उसमें एक सिंफ में आप भी शामिल हैं. उसने जो इंसाइट बताई वो ये बात करता है कि जैसे इस बच्ची ने पूरा स्टोरिकल वे बताया, ये बच्ची उसी स्कूल, उसी टीचर, उसी कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ेगी जैसे उस बच्चे को जिस टीचर के साथ रग़बत है, उस टीचर का अंदाज़ पसंद है, उस टीचर के साथ उसकी इंसाइट मैच करती है, वो सब्जेक्ट मुश्किल होने के बावजूद उसके नंबर उसमें ज़्यादा हैं. उसमें तो ये बहुत लेता चौकस. यानी ही ये बच्ची, इससे अगर आप यूं समझें कि मैथ के आप किसी एक इक्वेशन के बारे में पूछेंगे तो नहीं आएगी. मैं कहता हूँ हराम है, इसको पहाड़ आ गया. लेकिन अगर आप इससे किसी भी सब्जेक्ट में जो स्टोरिकल एसेस होते हैं, आप इससे जुबानी सुन लीजिए, वो सारा आता होगा. दादा अबू थे ना हमारे, इस जात के पहाड़े उनको 150 तक याद. जी, आपकी बात बचा है. वो इसलिए थे कि वो हिसाबी काबिलियत के थे, जिसको मैथमेटिकल. हाँ, चौकस से बहुत गिनतकार. अब आप देखिए कि वो लोग जो हैं, जैसे ये लोग जो हैं, जैसे ये रिदा है, रिदा जैसी तबीयत रखने वाले बच्चे जो हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं. ये बहुत अच्छे जो है वो मोटिवेटर होते हैं, ये बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते होते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, ये अफसाना लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, सफ़रनामा लिख सकते हैं. इनको अगर वैसा ही माहौल मुहैया किया जाए तो आपको रिदा पे अब जो गुस्सा है वो फ़ख्र में तब्दील हो सकता है. अल्लामा साहब, हमें माहौल मुहैया करना है. जी बिल्कुल इसी तरीके से, जी इसी तरह से वो बच्चा जो है उसको देखिए, मैं साफ सी बात यार डॉक्टर इतने भी पागल नहीं है. अल्लामा साहब, बहुत ठीक कर. अल्लामा साहब, आप बचपन में जब पहाड़े याद किया करते थे, हाँ, तो कैसे 2 दूनी 4 2 3 ऐसे 6 नहीं, वैसे ही सुनाइए जैसे वहाँ पे करते थे. 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8. आपने क्या समझा? इसमें मौसीकियत नहीं है ना? तो ये कुदरत का कमाल है कि बेसिकली हमारे जहन में जो मौसीकियत है वो इस कदर जज्ब होती है कि वही हमारे हाफजे में आसानी के साथ जज्ब होने का एक जो है वो जरिया होता है. और उस वक्त म्यूजिकल चीजें याद जल्दी हो. अब जो म्यूजिकल चीजें याद होती, तो अब वो बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंस का है, ये वाला, उसमें म्यूजिकल इंसाइट, टक्के की इंटेलिजेंस. ये बेसुरा बेतार है. अच्छा,
अब इंटेलिजेंस को हम क्या समझते हैं? अब समझते हैं कि 2000 नंबर लेने, 2000 में से 1000 नंबर लेने वाला काबिल है। और क्या, उससे खुश आपका रास्ता पूछे नहीं पता होगा। सारे अखबारों में नाम आता है उसका, जी, उसके बाद क्या होता है? इनाम मिलती है गाड़ी। मुझे सिर्फ ये बात बता दीजिए कि आज के दिन तक स्टैटिस्टिक इकट्ठा कीजिए, जिस बच्चे ने मैट्रिक में 1000 या 1100 में से 1095 मार्क्स लिए होंगे, उसका जरा मुझे बताइएगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट क्या था, उसका मुझे बताइएगा जरा ग्रेजुएशन के लेवल पे उसका रिजल्ट क्या था, उसका मुझे बताइएगा जब मास्टर लेवल पे गया तो तब उसका रिजल्ट क्या था। उसकी वजह है, वजह ये है कि मैट्रिक तक आप हैं रटे पर, आपने कुछ चीज़ों को रट्टा लगाया, सीख लिया, आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। लेकिन वो बच्चे जिनके नंबर कम थे, बच्चे दुनिया में दो किस्म के पाए जा रहे हैं। एक वो जिनके अंदर लिखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, वही चीज़ वो इंटरप्रेटर्स हैं, वो इधर से चीज़ उठाई इधर मुंतकिल कर दी, उनके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन वो बच्चा जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन यानी सीखना और उसको समझ के फिर याद करना, तो उसका टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। उसको समझ उस बच्चे से ज़्यादा होगी जिसके 1000 नंबर है, लेकिन उसके नंबर कम होंगे। वो बच्चा काबिल होगा, ज़हीन होगा, मार्क्स ऑब्टेनर नहीं। हम तो आज तक नंबर मिले नहीं अलामा। हमने अलामा साहब मैं आपसे छोटी सी बात, जिंदगी में नंबर नहीं मिले, सेकंड डिवीजन में पास होते रहे। जी, आप निंजा, आप स्पोर्ट्स में मास्टर, मार्शल आर्ट, ठीक है, आप मार्शल आर्ट्स किया, आपने शायरी के अंदर कितनी कुतब लिखी? मैंने 50 से ज्यादा लिखनी ना। आप मुझे ये बात बताइए, आपने इसके बाद जो है मौसीकी की, आपने फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगह पे ट्रेनिंग लेक्चर्स दिए, हाँ, बहुत बड़े, ठीक है, आप उसके बाद टेलीविजन से मुंसलिक हुए, एंकर हुए ना, एंकर बन गए। इसके अलावा आप एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, आप ब्रॉडकास्टर हुए। मुझे ये बात बताइए, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे जिनके साथ आपको कोई याददाश्त है? आप क्लास कह रहे हैं? दुनिया में मुझे ऐसा नहीं बंदा मिला जिसने इतने सारे काम ये मुझे मैं सिर्फ आपकी क्लास तक महदूद रहना, एक भी नहीं ऐसा चपड़कना दिया। तो क्यों नहीं हुआ? नंबर लेते थे वो पढ़ाकू। अच्छा, तो अब आपके नजदीक ये चीज है, आप फिर उनको काबिल कहेंगे या अपने आप को काबिल देखिए, कहेंगे? हमने तो मैं खुद साबित तारीफी की तरफ नहीं जा रहा, खुद सताइशी की तरफ भी। देखिए, हमने मकसद ये है कि तालीम भी हासिल किया जा सके। लेकिन आपने तालीम हासिल की है, उसके पीछे बहुत सारी एक वजह थी। दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ डाल। जी बिल्कुल, फिलोसफी में हमने कर लिया, इंग्लिश लिटरेचर में कर लिया, नफ्सियात में कर, हमने कोई पढ़ाई छोड़ी, ये पढ़ते नहीं। अलामा साहब, आपके ऊपर प्रेशर नहीं था, प्रेशर आपके तो- वालिदैन ने ये कहा था कि जाइए उड़िए, जाइए उड़िए और अपनी मर्जी कीजिए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं था। यार, ये डॉक्टर इतने भी पागल नहीं है, बात ठीक है। आप अलामा साहब, उस बच्चे को हर वो चीज पसंद होगी जिसमें गायकी होगी। आप इसको और पसंदीदा शख्सियत अगर उससे बात करेगी, वो बात का उस पर असर होगा। हाँ, बोहेमी है इसका, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखिए कर क्या है, हरकत क्या है। अलामा साहब, ये वो चीजें हमने खुद उनको घर में टेलीविजन मुहैया किया, हमने उनको स्टूडियोज में अपने साथ लेके गए, हमारे घर के अंदर भी रॉक स्टार्स आए। तो बच्चे ने किसी न किसी को आइडियलाइज करना है, बोहेमी को कर ले। आपके घर में जो है वो मुल्ला हजरात तो आने से रहे, आए तो सही, आके तो दिखाएं। तो आपके घर में जो है वो, अब यही तो एक इशू है। अलामा साहब, आप एक बात मुझे बताइए, वो जो डांसर बेटा है वो और ये, इस दोनों की उम्र में कितना फर्क है और रिदा की उम्र में कितना? 7 साल का है, 7 साल का फर्क है ना। तो मुझे ये बात बताइएगा कि इन तीनों बच्चों में उछल कूद ज्यादा कौन करता था? हमारे दादा अबू। वो तो उछल कूद भी थे ना। तो मैं तो आपके बेटे की बात कर रहा हूँ, आप इस बेटे और इस बेटी की बात कर रहा हूँ, तीनों में फिजिकली कौन ज्यादा अग्रेसिव का? डांसर है तो निचला नहीं बैठता, निचला नहीं बैठता था, और ये बच्चा कभी उठता नहीं था, ये खामोश नहीं होता। अच्छा, गाने लेकिन बैठा एक जगह पे हाँ, है। अच्छा, मुझे बताइए, घर की भारी चीजें अगर उठानी पड़ जाए, वालदा या आप कहें, तो तीनों बच्चों में से कौन सा बच्चा है जो चीजें जल्दी उठाता है? वही डांसर जो। अच्छा, वही उठाता है, वजनी चीज फौरन उठा। हाँ, वो पीछे नहीं हटता काम से। तो अच्छा, आपको ये लगा कि वो बच्चा भाग भाग के दौड़ के एक्टिव बहुत है, चल रहा होगा तो आपसे आगे एक्टिव आगे वो चल रहा होगा। तो आपको पता है अलामा साहब, इसके बारे में हार्वर्ड गार्नर कहता है कि वो काइनेस्थेटिक इनसाइट का है। क्या? काइनस? काइनेस्थेटिक यानी, साइनस तो सुने, ये काइनस काइनेस्थेटिक यानी फिजिकल, यानी जिस्मानी, यानी उसमें जिस्मानी काबिलियत है। तो हर वो बच्चा जिसके अंदर जिस्मानी काबिलियत होगी, वो जिस्मानी काबिलियत से मुताल्लिका शोबा जात ही को पसंद करेगा, वो जिस्मानी तरीके से ही उसको सिखाया जाएगा। आप उसको जिस वक्त इस बच्चे को सिखाएंगे तो ये दो
اس کے ساتھ سکھائیں گے. اور اب جب آپ اس کو بتائیں گے تو آپ یہ بات کہیں گے کہ ایک کے بعد 2 آتا ہے, 2 کے بعد 3 آتا ہے. آپ اس کو تفصیل میں جا کے کہانی سنا, جس کو تشریح کے ساتھ, اور وہ بچہ جو ہے اس کو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو تفصیل سے بتائیں گے. وائس اسلام آپ ابھی باہر رہیے, میں آپ کو بلواتا ہوں تھوڑی دیر. کوئی بہت سے پاگل نہیں آ گیا. جی نہیں, ایسے میرے پاس پاگل نہیں آتے. آپ علامہ ہیں, یہ بچے, ان پر مجھے فخر ہے, میں یہ سمجھ سکتا ہوں, میں دعوے کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں علامہ صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس 3 ایسے بچے ہیں کہ جن بچوں کے ساتھ میں تھوڑی سی ایک بات کہتا ہوں, ہم ان کو اگر ان کی جو فیلڈ ہے, ان کے اندر جو انسائٹ ہے, اگر اس انسائٹ سے ریلیٹڈ تعلیم اور اس انسائٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ان کے لیے فیوچر, ان کا مستقبل, اس کا تعین کریں گے تو ان بچوں پہ آپ کو فخر ہوگا. یہ یاد رکھیے. بات تو آپ پتہ کی کریں, ڈاکٹر اتنا بھی پاگل نہیں ہے. اچھا اب علامہ صاحب ہمارے گھر میں آپ غور کیجئے گا, وہ جو 9 قسمیں پائی جاتی ہیں اس میں ایک تو قسم ردا بفعال کر رہی, ٹھیک ہے. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری جو موسیقیت والی ہے وہ ردا میں نہ ہو, وہ کوئی 5% 10% وہ بھی ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد نیچر, آپ کو خوشبو پسند ہے, آپ کو پرندے پسند ہیں, بہت زیادہ بلیاں بھی پسند. آپ کو اب جیکے آپ نے پیٹس کا تذکرہ بھی کیا کہ آپ نے اس کو نہ, علامہ صاحب یہ نیچرل کیپیبلٹی ہوتی, یہ نیچرل انسائٹ ہوتی. اب جن آپ شاعر ہیں, آپ کو پھولوں کے تمام ناموں کا پتہ ہوگا, آپ کو پھولوں کے رنگوں کا پتہ ہوگا, تقریباً آپ کو پھول جو خوشبو ہوتی ہے اس میں تقسیم کر سکیں گے آپ کہ یار یہ خوشبو کس چیز کی ہے, یہ کلی کی ہے, یہ چمپا کلی کی ہے, یہ رات کی رانی کی ہے, یہ گلاب کی ہے, یہ جناب جو ہے وہ گل داؤدی ہے, یا اس طرح سے وہ آپ ان سب کا تذکرہ کریں گے. اس کے بعد ستارے, چاند, سورج, مسجد. یار یہ ڈاکٹر اتنا بھی پاگل نہیں ہے, باتیں ساری ٹھیک کر. یہ ساری چیزیں کیا آپ کو پسند ہیں نا؟ پسند ہے. تو آپ ستاروں کی باتیں نہیں کرتے؟ کرتا ہوں. فلک ستاروں تم تو سو جاؤ پریشان رات ساری. اب یہ آپ کی شاعری اس بات کو ثابت کرتی ہے, ان چیزوں کو پسند کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس نیچرل یعنی قدرتی انسائٹ میں باقاعدہ انوالو ہیں. اور دوسری چیز, آپ ننجا کے ماسٹر بنے تو اس کا مطلب آپ میں جسمانی قابلیت بھی پائی جا رہی. یہ ہو گئی 2 قابلیتیں. اور پھر اس کے بعد چونکہ آپ باقاعدہ شاعری اور ان نیچر سے انسپائرڈ ہی نہیں تھے, آپ نے 30 کے قریب کتب بھی لکھ ڈالی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں. تو جب آپ رائٹر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بنیادی طور پہ شخصی قابلیت میں بھی فعال کرتے ہیں, یعنی وہ بھی قابلیت انہوں نے بتائی, تو آپ میں 4 شخصیات موجود ہو گئی. اچھا اب ایک 5ویں چیز آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی کہ میں نے ٹریننگز بھی دی ہوئی, یعنی میں نے بتائی ساری تفصیلات, آپ نے لیکچرز بھی دیے. تو جو لیکچر دینے والا پرسن ہے, میں نے تو زندگی کا کوئی پہلو آپ سے چھپایا ہی نہیں. اچھا اس میں لسانی قابلیت بھی ہوتی, یعنی کہ جو پہلے والے اوریٹر ہیں, بہت بڑے اوریٹر. اس کا مطلب یہ ہو کہ 5 قابلیتیں آپ کی مار, ووکلسٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا, 5 قابلیت آئی. اور سنیں آپ مصوری بھی کر رہے ہیں, اور آپ آرٹ میں وہ جو چیزیں ان کو شروع میں کیا تھا لیکن وقت بولے تو چھوڑ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر وہ جو اسپیٹیل یعنی بصری وہ جو قابلیت ہے وہ کوئی 2-4-5% وہ بھی پائی جاتی ہے کہ تصویر کو آپ کو دکھائی دے تو آپ اس تصویر سے ایک الگ کہانی بار تو بنا بہت بڑے کہانی کار ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ قابلیتیں ہو گئی 6. اب اس کے بعد 7ویں قابلیت آپ کے پاس ہے, ڈانسر تھے ہم اپنی جوانی میں, غضب کی. وہ میں نے پہلے جسمانی قابلیت, اس کا مطلب جب آپ اچھے سپورٹس تھے تو آپ میں وہ چیزیں بھی منتقل ہوئی. اب اگلی ایک قابلیت جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 4-5-6-7 لوگوں کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کی خواہش ہوگی کہ میں ان کو لیڈ کروں, میں ان کو ساتھ لے کے چلوں, میں ان کے اخراجات وغیرہ کو لوں, اور پھر اس کے بعد اینڈ پر ہم اس کو جو ہے وہ تقسیم کر لیں. آپ ان کو جو ہے وہ مشورہ دے کے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جو اجتماعی معاشرتی قابلیت ہے وہ بھی آپ میں آ رہی. علامہ صاحب لاکھوں میں کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کے اندر 9 کی 9 قابلیتیں پائی جاتی ہوں, وہ آپ میں ہیں. اللہ اکبر, یار ڈاکٹر اتنا بھی پاگل نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کے اس بچے میں آپ ہی کی قابلیت کا ایک حصہ جو موسیقیت تھا وہ منتقل ہو گیا, آپ ہی کی قابلیت کا ایک حصہ
जो कहानीकारी का बहुत मौसीकी का वो शौक। रिदा में शिफ्ट हो गया। अरे आप ही की कहानी का एक हिस्सा, आप ही की सिफ्त का एक हिस्सा उसमें वो उसका एनेस्थेटिक यानी जिस्मानी काबिलियत का था उस बच्चे में मुंतकिल हो गया। अरे अब मैं ये समझता हूँ कि आजकल वैसे तो मुझे फैमिली प्लानिंग वाले पकड़ लेंगे, अगर आपके 9 बच्चे होते तो 9 के 9 बच्चों में मुख्तलिफ इंसाइट होती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 3 संभाले नहीं जा रहे, 9 कर दो। वो 3 इसलिए संभाले नहीं जा रहे कि हम तीनों को समझ के संभाल नहीं रहे। हाय हाय यार सुभान अल्लाह। ये वाह, वाह, ये कोई टेलीविजन के रिमोट का बटन नहीं है, वाह, वाह। ये किसी चलते हुए ये जो ये धागा लटक रहा है ना, ये कोई ये इस पंखे का जो है वो ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। वाह, इंसानों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनेज किया जाता है। क्या बात है यार, बहुत आपने तो दानाई के पते की बात। अब हम चीज़ों को यूज करते हैं, इंसानों को यूटिलाइज करते हैं। लम सब हमें इन बच्चों की सलाहियतों को समझ के इनको यूटिलाइज करते हैं। हर माँ बाप को, हर माँ बाप को, हर माँ बाप को। हर माँ बाप एक सिर्फ चीज- अलामा के ऊपर नजर आना चलिए मुझे एक बात बताइए, आपने कभी अल्लामा इकबाल की कोई बड़ी तकरीर सुनी? सुनिए बहुत बड़ी नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी तकरीर हो जिसमें बड़ा वो बड़े जनाब नज़्म शायरी सुनी है। शायरी सिर्फ सुनी है ना, उनकी कुतब तो इतनी है कि पढ़ने के लिए PhD करनी पड़ती यूट्यूब पे जो है। मुयस्सर है वो। कायदे आज़म की कोई किताब बड़ी पढ़ी आपने? नहीं क्यों? उनमें काबिलियत नहीं थी क्या? होगी ना, लेकिन वो मुकर्रर थे इस जात के। इसका मतलब अच्छे मुकर्रर थे, ओहो तो उनमें रिदा वाली काबिलियत थी। कायदे आज़म में जी अरे ये तो बच्चों की कायदे आज़म है यार, लड़कियों क्यों? की। इसलिए देखिए कि वो बहुत अच्छे लिंग्विस्टिक पावर यानी लिसानी काबिलियत के शख्स, अरे बेटा लीडरशिप क्वालिटी थी, बड़ी हो के पाकिस्तान बना। वकील थे। हाँ ये सारी काबिलियत जो मैंने पहले बताई उसके लिए मैं बेस्ट सिंबल अगर समझता हूँ तो वो कायदे आज़म है। लेकिन आप ये बात देखिए, हम वही वाली तो अगर हम करें कि अल्लामा इकबाल जो है वो खड़े तकरीरें होके- करें, वो तकरीरें और करें, कायदे आज़म शायरी फरमाएं। तो ये उलट हो जाएगा ना। हाँ अच्छा। अगर वो दो इतनी बड़ी हस्तियां दो मुख्तलिफ मिजाज पर हो सकती हैं और कामयाब हो सकती हैं, कामयाब दोनों, यानी बड़े अगर लोग अजीम अगर हस्ती। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े जोरे बयान वाले शोला बयान मुकर्रर नहीं थे तो वो अपनी कुतब तहरीर करने में अपनी आइडियालॉजी में उस जगह पर मौजूद थे जहाँ पे कोई दूसरा शख्स पहुंच नहीं सकता। अजीम हस्तियां, वाह वाह। अगर कायदे आज़म बहुत अच्छे मुकर्रर थे और बहुत अच्छी स्पीच करने वाले थे, लोगों को कायल करने वाले थे, अगर वो किताब नहीं लिख सके कोई बड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी काबिलियत पे शुबा करें। यार बातें तो सारी अच्छी, बोलते बहुत हैं डॉक्टर साहब, लेकिन बातें सारी अच्छी की। अल्लामा साहब वाह वाह। बोलता मैं इसलिए ज्यादा हूँ, कुछ पल्ले पड़ गया हमारे। मुझे गरज है अपनी इस नस्ल से, हाँ। मुझे अपनी इस नस्ल से मोहब्बत है। एक होते की नस्ल है सारी। ये अब अगर इतनी देर के बाद अगर आप अपने आप को इस तरह से इन अलकाबात के प्यार साथ से देखा था, प्यार हाँ, से प्यार से। आप उनको नहीं, आप हमारे प्यार? अल्लामा साहब को बुरा कह रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं वही ना प्यार से बोला। तो खुद- आप ये बात देखिए अल्लामा साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप इन बच्चों को मुकम्मल प्रॉपर तरीके के साथ, मैं समझता हूँ आज के मुअल्लिमीन को भी चाहिए, अच्छा। आप तो ट्रेनर हैं, आप इनके साथी को जाके बताएं कि भाई देखें अगर ये बच्ची जो है ना इसको स्टोरिकल वे में चीजें बताई जाएंगी, इनकी जो असाज़ा है ना उनका भी इलाज होने वाला है। इलाज तो अल्लामा साहब इस पूरी दुनिया का होने वाला है। हाय क्या होगा अब, जरा हमें थोड़ी सी जल्दी है, क्या बात आपने वाइंड अप क्लाइमेक्स पैदा कर दिया कि सारी दुनिया का इलाज होने वाला है बशमूल आपके। मैं कभी भी अपने आप को इलाज से मुबर्रा नहीं समझता। देखा मान गया फिर हमारी भी बात। अच्छा बात सुनिए, शेर तो सुनाइए, अभी जल्दी है थोड़ी, कुछ वो बेगम साहबा इनकी अम्मी जो है ना। चलिए आज का जो मतला है ना वो रिदा के नाम। अरे माशाल्लाह। रिदा मेरी बेटी भी है और वो डॉक्टर है हाँ कि अच्छा आपकी बेटी का नाम भी रिदा है? जी मेरा नाम उसका नाम भी रिदा है। अरे सुभान अल्लाह, हुस्न इत्तेफाक देखिए। जी बिल्कुल, वाह, रिदा वाह। चादर को कहते हैं और मैं हाँ। कहता हूँ वो मेरी चादर है। माशाल्लाह। पगडंडी लग रही थी पहाड़ों के दरमियान, हाँ हाँ हाँ, पगडंडी लग रही थी पहाड़ों के पहाड़ों के दरमियान, निकली हुई थी मांगलियों बालों के दरमियान। ओए ओए वाह वाह माशाल्लाह। पगडंडी लग रही थी पहाड़ों के दरमियान, हाँ निकली हुई थी मांगलियों बालों के दरमियान। हाँ पहले तकल्लुफात सभी बरतरफ हुए, हाँ अच्छा, पहले तकल्लुफात सभी बरतरफ हुए, वाह। फिर गुफ्तगू शुरू हुई आंखों के दरमियान, बहुत अच्छे, वाह वाह। फिर वाह, गुफ्तगू शुरू हुई आंखों के दरमियान। और आखिरी शेर, ज्यादा शेर नहीं सुनाने।
कमबख्त सबके सामने ले देना उसका नाम। आहा, कमबख्त सबके सामने ले देना उसका नाम, मैंने जुबान दावली दांतों के दरमियान। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तो रहमान साहब, आपके बच्चे, मुझे फख्र है इस बात पे कि आपके बच्चों में आपकी सलाहियतें मुंतकिल हुई हैं और आप अपनी उन सलाहियतों को उजागर कीजिए। और आपसे भी मैं एक दरख्वास्त करनी चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। हाँ, वो बनिए। हाँ। लेकिन अगर आप अपनी तालीम को बीच में छोड़ ये देंगे बात। तो ये याद रखिएगा कि जब तक किसी शख्स को मुआशी आसूदगी नहीं है उस वक़्त तक वो अपने शौक़ मुकम्मल नहीं कर ये सकता। चीज़ है। आपके वालिदैन ने आपके लिए मेहनत की, आपके वालिदैन ने आपके लिए दिन रात जो है वो एक किया, उन्होंने खून पसीना एक किया, तभी जाके आपको गिटार मुयस्सर हुए, तभी आप आज ब्रांडेड जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो हम कम से कम सीधा लंडे से लाते। उनको ये तो कर दें, उनको ये तो कर दें कि हम उनको जो है वो माली आसूदगी थोड़ी सी दें। वो मुझे ये बात बताइएगा, अगर आप दोनों कामयाब हो जाते हैं, आप जब कमाने लगोगे तो उस वक्त तो अल्लामा साहब की उम्र 80 साल के करीब पहुंच चुकी होगी, 70 साल के करीब पहुंच चुकी होगी। नहीं, उन्होंने आपकी दौलत से क्या लेना है? मैं आपको बताऊं, ये वैसे माशाल्लाह इस लिहाज से ये बच्चे अच्छे हैं कि तालीम के साथ साथ जो अपना ये यूट्यूबर है ना, और दूसरा ये कोई मॉडल है, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई एडिटर है, तो ये अपना खर्चा दाल अब निकाल लेते। अब मैं थोड़ा तो रिलैक्स। अल्लामा साहब ये बात देखिए कि अब अगर आगाज में इन बच्चों को हमें थपकी चाहिए, थप्पड़ नहीं। हमारे लिए वो प्यार है ना, थपकी है, लेकिन आइंदा उससे भी गुरेज करें। आप इनको सुनिए और फिर उसके बाद इनको गाइड कीजिए बिल्कुल। कि आपने आगे कैसे चलना। अल्लामा साहब, आप अपने तजर्बे को मुंतकिल कीजिए, जैसे आपकी सलाहियतें इनमें मुंतकिल हुई हैं तजुर्बा। वैसे आपका तजुर्बा भी इधर मुंतकिल हो। अगर इन्होंने कानों को ढक्कन न लगा लिया, कानों को मैं ये समझता हूँ कि कान में तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इनको दिखाना है। आंखों के आगे कोई ढक्कन नहीं आता, आपने दिखाना है। सुन लो अकल के अंधो, देखा करो अम्मा क्या करती हैं। आप ये देखें, हाँ बहुत ज़्यादा मत देखा करो। हाँ, वो देख दे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनकी अम्मा हमारे इंतजार में लेके जानी सब्जी। अच्छा, हाँ। तो अब अगर देखिए ना कि वो बेचारी जो है वो घर पे, अब अगर वो आपसे थोड़ी सी खफा हो जाएंगी, आप बैठे हैं जनाब डॉक्टर साहब के साथ मजमा लगा के, हाँ। और वो बेचारी जो है वो घर पे बैठी है आपके मुंह से, उन्हें भी कभी बाहर लेके निकला करें। निकलूंगा। वो एक ऐसी खातून है कि जिसने आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेनी, ना ही उसकी रिटायरमेंट है, मेरी बात ना सुने, उसकी कोई पेंशन है। मेरी बात सुने, हमारी है वो लाठी, हमें बाहर लेके निकलती है, बहुत अच्छी है। वो उन पे आपको फख्र होना हाँ, चाहिए। बहुत और आप दोनों भी अल्लामा साहब जैसे कहते हैं वैसा ख्याल कीजिए, अपनी बात को नरमगी के साथ बयान कीजिए, हाँ। और आपके लिए ढेरों दुआएं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कामयाब और हुए। आखिर पे इतना अल्लामा बता साहब, दूं, आप 3 दफा हो गया आपको मेरे पास आते हैं, आप वैसे मरीज नहीं लाते। यार मेरी बात सुन, यहाँ काम खतरनाक शुरू हो रहा है तो निकल चलो, अब ये भागते बात हैं। करेंगे है ना। क्योंकि ये मरीज है नहीं, ना पहली दफा मरीज थे, ना दूसरी दफा कोई मरीज था, ना ये तीसरी दफा कोई मरीज है। अल्लामा साहब, आप मेरे पास आते हैं, बातें सुनते हैं, बातें करते हैं, उठ के चले जाते हैं, आप कोई पक्का मरीज तो मेरे पास लेके नहीं ये है। मरीज है इश्क। उसकी दवा भी अल्लामा साहब के पास। अच्छा फिर अब मेरी बात सुने, बता दें डॉक्टर साहब, बता बोलिए। दें। डॉक्टर साहब फिर जरा दिल थाम के बैठी। हम हैं प्रैंकस्टर बुनियादी तौर पे सारे। अच्छा, मुझे तो फिर अब आप गैंगस्टर लगे हैं। और सुनिए, हमने जितना ये आया है ना, हमने प्रैंक किया आपके साथ, हमें कोई मसाइल नहीं है। रमा साहब, आपने तो इतनी लंबी चौड़ी मुझसे तकरीर करवा दी और मैं तो वो पता नहीं क्या क्या, कुछ मेरी तो सारी एनर्जी ज़ाया हो गई। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, नाराज मत होइएगा। जितनी बातें आपने अच्छी समझाई हैं ना, ये हमने अच्छा मैसेज आगे पहुंचाया है, अपने खुद को मरीज साबित करके आपसे वो चीज़ें निकलवाई हैं। और इतने वो लोग जो है ना, जब हम लगाएंगे ना इसको, तो देखिएगा बच्चे कितने खुश होते हैं। रमा साहब, मैं नाराज तो नहीं ना हो यार? नहीं, मैं नाराज नहीं, बल्कि आपसे कहता हूँ कि मैं अपने आप को हर तरह के प्रैंक के लिए ऑफर करता हूँ। ओए यार, ये डॉक्टर बहुत ही भाई माशाल्लाह आपका। आप जब मर्जी चाहिए मेरा टेस्ट लीजिए, और मैं चाहूंगा कि भी जनाब आप अच्छा। ऐसा कीजिए, आपको खुल ही आवाज़। हमने बड़ी कोशिश की कि हम आपको कोई गुस्सा दिलाएं, आपको हमने छेड़ा, तंग किया, आप टस से मस नहीं हुए डॉक्टर साहब यार।
اس لیے کہ جس نشست پہ میں بیٹھا ہوں اس کا پہلا تقاضا یہی بات ہے، اور زندگی میں مجھے جو صبر اس کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر اتارنا، اس کو صبر کہتے ہیں، ورنہ برداشت۔ حتیٰ کہ جتنی تیزی سے آپ نے یہ ریاکشن بھی قابو کیا ہے نا، جب ہم نے آپ کو بتایا کہ پرینک کیا ہے، بالکل اتنی تیزی سے آج تک ڈاکٹر صاحب کسی بندے نے خود پہ قابو نہیں میں پایا۔ مثبت ایسے ہی ہے۔ سوچتا ہوں، واہ واہ، مجھے منفی سوچ نہیں آتی۔ ارے ڈاکٹر صاحب آپ کی عظمت کو سلوٹ ہے۔ آپ کو سلام ہے، آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، آپ بچوں، میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت جو ہے وہ مبارکباد ہے، لیکن آپ سے وہی کہوں، آپ کے جو والدین ہاں ان سے بڑی طاقت۔ اچھا میری بات تو سنیں، جو اس کے آپ کے چیئرمین ہیں نا بشیر مہدی صاحب، ہاں ہاں ہاں، ان سے ہم نے مل کے پہلے ہی آپ کے آنے سے پہلے کیمرے کسی نکر میں ہم اڑس لیتے ہیں۔ یہ بشیر بھائی تو بہت بڑے ڈرامہ باز ہیں، مجھے پہلے بھی پتا تھا ان کا کہ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں اس ہاسپٹل کو آج سے کچھ 7 سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تو وہی مالک ہے نا، تو مالک دیکھتا ہے، انہوں نے یہ پرینک میرے ساتھ 7 سال پہلے کیا کہ ایک مریض مصنوعی بنا کے میرے پاس بھیج دیا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا عجیب نکلا تھا، کیونکہ وہ مریض واقعتاً ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ اس کے اندر ایسی ڈیزیزز ہیں، اس کا 6 مہینے میں نے علاج کیا۔ اچھا اب دیکھیں وہ پیچھے جو الماری ہے نا، اس کے پیچھے کیمرہ رکھا ہوا۔ اوہ اچھا 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 اچھا، آئے ڈاکٹر صاحب کو اب پوری طرح یار اوئے اوئے، بہت اچھے جی، بہت اچھے، تھینک یو۔ اوکے اللہ حافظ۔